امیدواروں نے پرجا بھون میں احتجاج کرتے ہوئے تقررات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سال 2008 کے ڈی ایس ٹی امیدواروں نے جمعہ کو پرجا بھون کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے ان کے تقررات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جیو نمبر 9 کو کابینہ میں منظور کیے 1 سال گزر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نوکریاں نہیں دی گئی ہیں۔ 1399 امیدوار تقررات کے منتظر ہیں۔ امیدواروں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے درخواست کی ہے کہ وہ اس جانب توجہ دے اور فوری طور پر ان کے تقررات عمل میں لائے۔ حکیم پیٹ میں واقع نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف انڈسٹریل سیکیورٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں CISF کانسٹیبل کے طور پر تربیت مکمل کرنے والے کانسٹیبلز نے پریڈ کی۔ فائر ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام CISF کانسٹیبل کے طور پر 1300 کانسٹیبلز نے تربیت مکمل کی ہے۔ جمعہ کو حکیم پیٹ میں واقع نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف انڈسٹریل سیکیورٹی مینجمنٹ میں تربیت یافتہ CISF کانسٹیبلز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد کی گئی۔ CISF کے DG راجویندر سنگھ نے عملے سے سلامی لی۔ دریں اثنا تربیت میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کانسٹیبلز کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر DG نے کانسٹیبلز کو مبارکباد پیش کی اور انہیں اپنی مہارت اور جسمانی طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے اخلاقیات، ایمانداری اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ دیا۔ 3 جنوری 2025 میں نیشنل انڈسٹریل سیکیورٹی اکیڈمی میں 31ویں بیچ کے آرکشک اگنی کا آج سفل دیکشانت سماروہ کا آیوجن کیا گیا ہے اور اس میں کل ملا کے 1300 پرشکشنارتھی آج یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد یہ سبھی ٹرینیز اپنے اپنے یونٹس میں جائیں گے اور فائر سروس کے یونٹس میں وہ اپنا یوگدان دیں گے۔ نیسا میں اس سنکھیا میں یہ ٹریننگ جو دیا گیا ہے، یہ پہلی بار اتنی بڑی بیچ کو یہاں سے پاس آؤٹ ہوا ہے اور یہاں کے ٹرینیز کو فائر سکلز میں، فائر مینجمنٹ میں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اور بہت سارے ادر سکلز جو ان کے آگے آنے والے چنوتیوں کو سامنا کرنے کے لیے اپیوگ کرے گا، وہ سبھی سکلز ان کو پردان کیا ہے۔ تمل ناڈو کے کوئمبتور میں LPG سے بھرا ایک ٹینکر الٹ گیا۔ ٹینکر الٹ جانے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر گیس کا اخراج ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ کوئمبتور کے اویناشی فلائی اوور پر جمعہ کی صبح تقریباً 20 ٹن LPG سے بھرا ایک ٹینکر الٹ گیا۔ یہ ٹینکر کوچی بھارت پیٹرولیم پلانٹ سے کوئمبتور میں ایک اسٹوریج گوڈاؤن تک LPG لے جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ ڈرائیور کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ ٹینکر الٹنے کی وجہ سے گیس کا بڑے پیمانے پر اخراج ہوا اور کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد حالات پر قابو پایا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گیس کا اخراج ہونے کی وجہ سے آس پاس کے رہائشیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ احتیاط کے طور پر بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 5 اسکولوں کو تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا اور حادثے کے 1 کلومیٹر کے حدود میں رہنے والوں کا تخلیہ کرا دیا گیا تھا۔ حکام نے بتایا ہے کہ اویناشی فلائی اوور کو بند کر دیا گیا ہے اور گاڑیوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ الٹے ہوئے ٹینکر کو وہاں سے ہٹانے کے لیے خصوصی آلات کا استعمال کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے سبری ملا جانے والی ایپا عقیدت مندوں کی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں بس ڈرائیور موقع پر ہلاک ہوا اور کئی عقیدت مند زخمی ہو گئے۔ کیرلا میں ایک المناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب حیدرآباد کے اپوگوڑا علاقے سے ایپا عقیدت مندوں کو لے جانے والی بس دریائے پامبا کے قریب گھاٹ روڈ پر الٹ گئی۔ اس واقعے میں ڈرائیور کی جان چلی گئی۔ ڈرائیور کی شناخت راجو کے طور پر کی گئی ہے۔ کئی عقیدت مند بھی زخمی ہو گئے۔ عقیدت مندوں کا تعلق حیدرآباد کے پرانے شہر کے مادنا پیٹ علاقے سے بتایا گیا ہے اور وہ سبھی سبری مالا کی یاترا پر تھے۔ مقامی افراد نے فوری طور پر زخمیوں کو بس سے نکال کر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا ہے۔ حکام حادثے کی وجوہات کی تحقیقات میں مصروف ہو گئے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے چارمینار رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی اور رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ نے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر چلائی جا رہی خصوصی ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें सालाना उर्स के मौके पर हैदराबाद से अजमेर के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली और रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर अजमेर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तरियसना ज़ायरीन से मुलाकात भी की। इस मौके पर मजलिस के दीगर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में कुछ बदमाशों ने मकानात के बाहर खड़ी 5 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। जराये ने बताया कि विजयवाड़ा के भवानीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद के कमरीपालम सेंटर के कोटैया स्ट्रीट में मकानात के सामने खड़ी 5 मोटरसाइकिलों को नजर आतिश कर दिया गया है। बताया जाता है कि पिछले 1 महीने से शरपसंद अनासिर कई गाड़ियों को आग लगा चुके हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मामले की तहकीकात का आगाज किया है। నైట్ 1:25 निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल में 10वीं जमात की 3 तालिबात लापता हो गई हैं। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात से वक्फे से तलबा व तालिबात के लापता होने की इतलात मौसूल हो रही है। ताज़ा तरीन वाक़या निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल मरकज से सामने आया है। बताया जाता है कि मुकामी गर्ल्स हाई स्कूल में 10वीं जमात की तालीम हासिल कर रही 3 तालिबात जुमेरात के रोज से लापता हैं। वालिदैन के मुताबिक तालिबात जुमेरात को स्कूल गई थी लेकिन घर वापस नहीं लौटी। रात देर गए तक वालिदैन उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास तलाश करते रहे लेकिन उनका पता नहीं चल सका, जिसके बाद वालिदैन ने पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके गुमशुदा तालिबात की तलाश शुरू कर दी है। रियासत आंध्र प्रदेश की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा जिले में नए साल के मौके पर रेव पार्टी का इनेकाद किया गया। पुलिस ने मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नए साल के मौके पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा जिले में रेव पार्टी के इनेकाद ने हलचल मचा रखी है। बताया जाता है कि गोलापुंता रोड पर बुद्धा मुजस्सिमा ओम सिटी लेआउट में नौजवान लड़कियों के साथ रेव पार्टी की गई। जनसेना के रहनुमा वी मुत्तियाला राव की जानिब से पार्टी का इनेकाद किया गया था। इतला मिलने पर पुलिस ने जनसेना के लीडर और 4 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद को मौसम गर्मा में पीने के पानी की फराहमी पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा आबरसानी के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने हैदराबाद शहर में अवाम को पीने के पानी की फराहमी के मंसूबों और आने वाले मौसम गर्मा में हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने के पानी की फराहमी के सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इजलास में मूसा नदी की सफाई के एक हिस्से के तौर पर गोदावरी का पानी हैदराबाद को सरबराह करने पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी और सीनियर अफसरान ने इजलास में हिस्सा लिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन को कारोबार में मदद फराहम करने के एक हिस्से के तौर पर मछली फरोख्त करने वाली 25 मोबाइल गाड़ियों का इफ्तिताह किया गया। खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के लिए कारोबार में मदद फराहम करने के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने मछली फरोख्त करने वाली 25 मोबाइल गाड़ियां मुतारिफ करवाई हैं। रियासती वजीर सीता अक्का ने प्रजा भवन में उन गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 10 लाख रुपये मालियत की ये गाड़ियां 4 लाख रुपये की रियायती कीमत पर फराहम की जा रही हैं। ताज़ा मछली और मुख्तलिफ पकवानात बेचने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह है कि ये पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत खवातीन के एसएचजी के लिए तैयार की गई हैं। इब्तदाई मरहले में 32 गाड़ियों की मंजूरी दी गई है। माही परवरी के अहदेदारों और DRDOs ने कलेक्टर के हमरा एसएचजीज का इंतखाब किया है। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस आजमाइशी दौड़ में कामयाब रही। ट्रेन ने 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर किया।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सर्विस का पहला मरहला इस माह से शुरू हो रहा है। वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन राजस्थान के कोटा में आजमाइश के दौरान 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने में कामयाब रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखे जा रहे हैं जिनमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन आजमाइश के दौरान 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आ रही है। बताया जाता है कि आजमाइशी दौड़ की कामयाब तकमील और रूट को हतमी शक्ल देने के बाद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाएगा। वजीर रेलवे ने साल 2023-24 में इस ट्रेन को मुतारिफ करवाने का ऐलान किया था। वजारत रेलवे की जानिब से अभी तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट्स को हतमी शक्ल तो नहीं दी गई है, लेकिन मुजवज़ा रूट्स में नई दिल्ली पुणे और नई दिल्ली श्रीनगर रूट शामिल हैं। टमाटर की कीमतों में गिरावट से मायूस किसानों ने मेदक जिले में अपनी फसलों को आग लगा दी। ज़राए ने बताया कि मेदक जिले के शिवमपेट मंडल के नवाबपेट गांव के किसानों ने माली नुकसानात के चलते एक मायूस कुन कदम उठाते हुए अपनी टमाटर की फसलों को आग लगा दी है। टमाटर के खेतों में शदीद नुकसानात का सामना करने वाले किसानों में मायूसी पाई जा रही है और उन्होंने बतौर एहतजाज अपनी फसलों को आग लगा दी है। मुकामी ज़राए से पता चला है कि कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से किसानों को पहले ही नुकसानात का सामना करना पड़ रहा था और उसी वजह से उन्होंने बतौर एहतजाज अपनी फसलों को आग लगाई है। इस वाक़े ने इलाके में किसानों को दरपेश जद्दोजहद की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जजीरों की तरक्की से मुताल्लिक़ एजेंसी के इजलास की सदारत की। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जजीरों की तरक्की से मुताल्लिक़ एजेंसी IDA का 7वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। इस इजलास में अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के अलावा आला अफसरान ने शिरकत की। आपको बता दें कि IDA की तश्कील साल 2017 में की गई थी, जिसका मकसद मुल्क के जजीरों की मजमूई तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी जिले के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी टाउन में महकमा म्यूनसिपल एडमिन के ज़ेर एहतमाम 44 करोड़ रुपये के बजट से अमृत उजाला स्कीम का इफ्तिताह किया। बादअज़ां उन्होंने ज़िला ख़वातीन के एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तामीर किए गए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। दामोदर राज नरसिम्हा के हाथों महिला समख्या के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के ज़रिए चलाए जाने वाले पेट्रोल पंप के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से इंडियन ऑयल पंप के क़याम का संग बुनियाद भी रखा गया। अपने खिताब में दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी ज़िले में ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम पहले पेट्रोल स्टेशन के क़याम की सताइश की और ख़वातीन को तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। सावित्री बाई फुले के नक्श कदम पर चलने की तरगीब भी दी। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने ख्वाहिश की कि ख़वातीन तमाम शोबों में भरपूर तरक्की करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा आबी सरबराही के अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो अगले 25 सालों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर हैदराबाद शहर में ताज़ा पानी की फराहमी के लिए बुनियादी ढांचे का मंसूबा तैयार करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में जुमा को
इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हैदराबाद वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का एक इजलास मुनक्किद किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास में महकमे आबी सरबराही के अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो आइंदा 25 सालों की जरूरियात को मद्देनजर रखकर हैदराबाद शहर में ताज़ा पानी की फराहमी के लिए बुनियादी ढांचे का मंसूबा तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने ये भी हिदायत दी है कि मुस्तकबिल का मंसूबा ग्रेटर हैदराबाद की तौसी को मद्देनजर रखते हुए साल 2050 तक बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करे और हर घर के लिए पीने के पानी के साथ सीवरेज प्लान भी बनाया जाए। ज़रूरत पड़ने पर एजेंसीज और कंसल्टेंसीज की मदद भी ली जाए। वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दिया दाना किशोर, स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव वो दीगर ने इजलास में शिरकत की। अहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि फिलहाल हैदराबाद शहर की आबादी की जरूरत के लिहाज से पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। इजलास में इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया कि शहर को फिलहाल मंजीरा, सिंगूर, गोदावरी और कृष्णा से पानी फराहम किया जा रहा है और गोदावरी फेज 2 के जरिए ज्यादा पानी लाने और उस्मान सागर और हिमायत सागर को पीने के पानी की फराहमी के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने सावित्रीबाई फुले को खिराज अक़ीदत पेश किया। समाजी जहदकार सावित्रीबाई फुले की यौम पैदाइश तक़रीबात तेलंगाना भवन में मुनक्किद की गई। BRS के कारगुजार सदर KTR ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। KTR ने कहा कि सावित्रीबाई फुले एक अजीम खातून थी जिन्होंने अपनी जिंदगी पसमानदा तबक़ात की तरक्की और ख़वातीन की तालीम के लिए वक्फ कर दी। इस प्रोग्राम में हुजूराबाद के MLA P कौशिक रेड्डी, MP VD राजू रविचंद्र, साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़, साबिक़ MLA पद्मा देविंदर रेड्डी वो दीगर ने हिस्सा लिया। भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने रिजर्वेशन के नफाज को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। कहा दोनों कौमी पार्टियों ने पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफी की है। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में के कविता ने BC महासभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस और BJP हुकूमतों ने BC के लिए रिजर्वेशन के नफाज को नजरअंदाज किया है। दोनों कौमी पार्टियों ने BC के साथ नाइंसाफी की है। के कविता ने कहा कि मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने काका क्लेलकर कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था और मरकज में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि वो ज़ात-पात की मर्दमशुमारी नहीं करेगी। दोनों कौमी पार्टियां BC के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी कह रही हैं अगर वो गलत है तो वो मुस्तकिल तौर पर सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगी। BRS रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि सिर्फ इलाकाई पार्टियों ने ही BC तबके के साथ इंसाफ किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें ये सोचना होगा कि BC तबके को क्या फ़ायदा पहुंचा है। दरियासना उन्होंने सावित्रीबाई फुले को भरपूर खिराज अक़ीदत भी पेश किया और कहा कि NTR, KCR, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक की क़यादत में सिर्फ इलाकाई पार्टियां ही BC के साथ इंसाफ कर चुकी हैं। 13 ఏళ్లకు అప్పుడు విద్యలో రిజర్వేషన్ వచ్చింది అంటే నెహ్రూ గారి రాజ్యంలో అన్యాయమే, ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో బీసీలకు అన్యాయమే। తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారు వస్తే ఇదే VP సింగ్ గారు నేను అమలు చేస్తున్న మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్ అంటే పార్లమెంటులో గంటన్నర మాట్లాడతారు రాజీవ్ గాంధీ గారు। మాట్లాడి ఏమంటారు, బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తే ఈ దేశం విచ్ఛిన్నం అయిపోతుందని చెప్పి ఆనాడు రాజీవ్ గాంధీ గారు మాట్లాడినరు। ఇది చరిత్ర కాదని లేని వాస్తవం, ఇది తప్ప అని నేను కాంగ్రెస్ వాళ్ళని వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నా। ఆ తర్వాత 2006లో విద్యలో వచ్చింది రిజర్వేషన్। ఇక కొట్లాడంగా మరి సోనియమ్మ రాజ్యం వచ్చింది। సోనియమ్మ రాజ్యంలో 2011లో కులగణన చేస్తామని చెప్పి మొదలుపెట్టిండ్రు। 4500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిండ్రు, కులగణన చేసిండ్రు। కానీ ఆ రిపోర్ట్ మాత్రం ఇంతవరకు బయట పెట్టలే। ఎందుకోసం భయం, మనం ఎంతమంది ఉన్నామో తెలిస్తే అంత వాటా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని భయం తప్పితే ఇంకొకటి ఏమీ లేదు। 4500 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సోనియమ్మ రిపోర్ట్ ఇవ్వకుండానే వెళ్ళిపోయింది। ఆ తర్వాత BJP ప్రభుత్వం 2014లో వచ్చిన తర్వాత BJP వాళ్ళు కూడా రిపోర్ట్ బయట పెట్టకుండా ఇప్పుడు ఏమంటారు, బాజాప్తా ఓపెన్గా చెప్తున్నారు BJP నాయకులు, మేము కులగణనకు వ్యతిరేకం,
మేము కులగణన చెయ్యము అని చెప్తా ఉన్నారు ఇవాళ. అట్లా అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టులో కూడా వాళ్ళు అఫిడవిట్ వేసిండ్రు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే 2 జాతీయ పార్టీలు, అది కాంగ్రెస్ కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు, అడుగడుగున బీసీలకు అన్యాయం చేసిరు తప్పితే ఎక్కడ కూడా న్యాయం చేయలే. ఇవాళ నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ ఏ ఒక్కటి అవాస్తవమైనా నేను రాజకీయాల్లోంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటానని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీ పార్టీకి. నేను కరెక్ట్ మాట్లాడుతా ఉన్నా, న్యాయబద్ధంగా మాట్లాడుతా ఉన్నా, ధర్మబద్ధంగా మాట్లాడుతా ఉన్నా. ఎవరన్నా ఈ భారతదేశంలో బీసీలకు న్యాయం చేసిరంటే అది కేవలం ప్రాంతీయ పార్టీలు మాత్రమే. పైన మమతా బెనర్జీ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే నవీన్ పట్నాయక్ గారు కావచ్చు, శరద్ పవార్ గారు కావచ్చు, ఏఐడిఎంకే కావచ్చు, డిఎంకే కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క చోట మీరు ఎక్కడ చూసినా మన కేసీఆర్ గారు కావచ్చు, ఎన్టీఆర్ గారు కావచ్చు, కేవలం బీసీలకు న్యాయం చేసిందంటే. समग्र शिक्षा के मुलाजमीन ने हैदराबाद के बशीरबाग में एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और इंतखाबात से कबल किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। अपनी मुलाजमतों को बाकायदा बनाने और इंतखाबात से पहले किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए समग्र शिक्षा के मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। जुमा को एहतजाजी मुलाजमीन ने हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में एक ज़बरदस्त रैली निकाली। तेलंगाना तली के गेटअप में एक खातून एहतजाजी रैली का हिस्सा बनी और उसने सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया। खातून की क़यादत में यानी तेलंगाना तली की क़यादत में एहतजाजियों ने एक रैली निकाली। इस मौके पर मुलाजमीन ने उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने और इंतखाबात से क़ब्ल उनसे किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। दरियासना पुलिस ने रैली को रोक कर एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ मुबारक रवाना किया। सुल्तानुल हिंद हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स शरीफ के ज़िमन में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन से अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ मुबारक रवाना किया। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, कंटेस्टेड एमएलए फिरोज खान व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के सनती इलाके जीडी मेटला में एक केमिकल गोदाम में जबरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि जीडी मेटला में वाक़े ऋषि केमिकल गोदाम में जुमा को ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में आसमान तक बुलंद होती हुई आग और धुएं के कसीफ बादल देखे गए। आग लगने की वजह से मुकामी लोगों में डर व खौफ फैल गया। इतला मिलने पर आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। आग की शिद्दत की वजह से इमदादी कार्रवाइयां अंजाम देने में मुश्किलात का सामना रहा। आग के नतीजे में इलाके में शदीद धुआं फैल गया और मुकामी अफराद ने सांस लेने में दुश्वारियों की शिकायत की। आग लगने के इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है, लेकिन भारी पैमाने पर माली नुकसान का अंदेशा है। मुकामी हुकाम इस आग की वजूहात की तहकीकात में मसरूफ हो गए हैं। इब्तदाई इतलात कहती हैं कि केमिकल के रसाव की वजह से आग लगी होगी। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने पर तनकीद की है। साबिक वजीर केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रैतु भरोसा स्कीम के निफाज को लेकर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। 26,500 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया है। रैतु बंधु के नाम पर किसानों को 1 रुपया भी अदा नहीं किया गया। केटीआर ने याद दिलाया कि इंतखाबात से पहले ये कहा गया था कि किसानों को बादशाह बनाया जाएगा। फार्मर्स डिक्लेरेशन के नाम से बहुत से वादे किए गए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अब उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर चाहते थे कि किसान हुकूमत करे और कांग्रेस ने किसानों को भिखारी बना दिया है। कर्ज माफी स्कीम को लेकर भी केटीआर ने हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि किसानों के कर्ज माफ करने के बाद दावे किए जा रहे हैं और हर जिले में गांव-गांव में
कर्ज मुआफ़ी की फहरिस्तें लगाई जानी चाहिए और ये वाज़ेह करना चाहिए कि कितने किसानों का कर्ज मुआफ़ किया गया है। निज़ामाबाद के अक़लियती कांग्रेस कायदीन ने तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 60 करोड़ रुपये के फंड्स जारी करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव व दीगर से इजहार तशक्कुर किया है। तेलंगाना अर्बन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एम दाना किशोर ने जियो नंबर 51 के जरिए निज़ामाबाद के तमाम बल्दी डिवीजन्स बिलखुसूस 22 मुस्लिम बल्दी डिवीजन्स वो इलाकों की तरक्की और बुनियादी ज़रूरी सहूलतों की फराहमी के लिए 60 करोड़ रुपये के तरक्याती फंड्स जारी किए हैं। साबिक़ डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम, सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली, एडवोकेट सीनियर कॉर्पोरेटर M.A. खुद्दूस व दीगर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, निज़ामाबाद के इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हुकूमत ने निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, तामीरी व तरक्याती कामों के लिए 60 करोड़ रुपये के फंड्स मख्तस किए हैं और फंड्स को जारी भी किया गया है, जो कि शहरियान निज़ामाबाद के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है। अक़लियती कांग्रेस कायदीन ने बताया कि क़ब्ल हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को हुकूमत ने 10 करोड़ रुपये के फंड्स जारी किए थे, जिससे कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। कायदीन का कहना था कि अब तक निज़ामाबाद में जो नाक़स काम अंजाम दिए गए थे, इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर वो दीगर मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से शिकायत करते हुए नुमाइंदगी की जा चुकी है और हुकूमत की जानिब से जारी किए गए 60 करोड़ रुपये से मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए अवाम को सहूलतें मुहैया करवाई जाएंगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद अपने पासपोर्ट सेवा मराकज़ वाक़े टोली चौकी और अमीरपेट को बेहतर मकामात पर मुंतकिल करने जा रहा है। RPO जे स्नेहा जान ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पासपोर्ट सेवा मराकज़ को बेहतर मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्त दहिंदगान इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। स्नेहा जान ने बताया कि हैदराबाद RPO, जो कि 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र चलाता है, ने रोज़ाना औसतन 4,200 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की है और साल 2024 में तकरीबन 9 लाख से ज़ायद दरख्वास्तों पर काम किया गया है और पासपोर्ट की इजराई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट व दीगर मुताल्लिक़ा खिदमात अंजाम दी गई हैं। RPO ने कहा कि दरख्वास्त दहिंदगान का सबसे आम मसला गलत दस्तावेज़ात की फराहमी होता है, जो कि मुख्तलिफ मसाइल का सबब बनता है। Thank you so much. Last time మనం 2023 December just when I took charge, update on my RPO Hyderabad's performance for the last year 2024 and what are our expected outcomes for 2025. ముందుగా మాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అచీవ్మెంట్ అండి, మీకు గుర్తే ఉండుంటుంది 2023లో పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత చాలా డిమాండ్ ఉండి అపాయింట్మెంట్స్ దొరికితే చాలామంది ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 30-40 డేస్ సైకిల్ ఉంటుంది. బట్ విత్ కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మనము ఈ ఇయర్ అంటే 2024లో సైకిల్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు 6 to 8 వర్కింగ్ డేస్ అండి. ఎస్పెషలీ మన PSKs విచ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ హైదరాబాద్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అదైతే నెక్స్ట్ వర్కింగ్ డేకి అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. తత్కాల్ అపాయింట్మెంట్స్ కూడా మనకి 1 to 5 వర్కింగ్ డేస్లోనే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో మనకి రీజనల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ కింద 5 PSKలు ఉన్నాయి, 14 PO PSKలు ఉన్నాయి. PSK అంటే పాస్ కేంద్రాల్లో వీ వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ అపాయింట్మెంట్స్. సో ఆ విధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ వాళ్ళ సహకారంతో అండ్ అలాగే మినిస్ట్రీ వాళ్ళ ఇచ్చిన సపోర్ట్తో మనకి ఇప్పుడు వరంగల్ ఇస్ ఆర్ లార్జెస్ట్ PO PSK ఇన్ హైదరాబాద్ రీజన్ అండి. We are almost handling 130 applications every day there. ఒక 120 నార్మల్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ 10 PCC అక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము. అలాగే మనకి ఈ ఇంకొక 5 PO PSKs అంటే ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్, వికారాబాద్, మేడ్చల్ అండ్ నల్గొండ, ఇక్కడ కూడా మనము ఆల్మోస్ట్ 90 అపాయింట్మెంట్లు రోజు చేస్తున్నాం. ఈ అపాయింట్మెంట్స్ పెంచడం వల్ల అండి ప్రజలకి కూడా చాలా అందుబాటులో అవైలబిలిటీ దొరుకుతుంది. దే డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ ఆన్.
हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ममनुआ चीनी मांझे की फरोख्त करने पर 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र महकमा पुलिस चौकस हो गया है और इंसानों समेत परिंदों को जानलेवा ममनुआ चीनी मांझे से बचाने के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स को तैनात किया गया है। टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद के पुराने शहर में पतंग की दुकानात पर अचानक छापे मारे और 10 लाख रुपये मालियती ममनुआ चीनी मांझा जब्त कर लिया। दरियासना चीनी मांझा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने पर 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज मंगलहाट, गोशा महल और एबिट्स के इलाकों में 22 अफराद को गिरफ्तार करके 18 मुकदमात दर्ज किए गए थे। हर साल चीनी मांझे की वजह से जानी नुकसान होता है। हाल ही में खम्मम जिले में एक मोटरसाइकिल सवार के गले में चीनी मांझा फंस जाने की वजह से वो शदीद जख्मी हो गया था। पुलिस इंसानों और परिंदों को नुकसानात और हादसात से बचाने के लिए चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज हम लोग अपना 4 जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर्स और हमारे साथ शाहनदीगंज इंस्पेक्टर और टपाचपुत्रा, आसिफ नगर एंड मंगलहाट इंस्पेक्टर, ये सब लोगों को मिलके हमारे सीपी साहब के आर्डर्स के मुताबिक हम लोग एक स्पेशल ड्राइव कल से कर रहे। ये जो बैंड प्रोहिबिटेड ये चाइनीज़ मांझा है, इसके ये लोग जो क्लैंडस्टाइनली जो बेचने वाला है वो सबको हम लोग अरेस्ट करके कल स्पेशल टास्क टीम ने 12 लोगों को हम हमारे कस्टडी में लिए और वो लोगों के साथ हम 1500 तक करीब 1500 तक ये जो चाइनीज़ मांझे हम लोग बरामद करें और ये लोगों के ऊपर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के किताब से हम लोग एक्शन ले रहे और पब्लिक को हम लोग अपील करते हैं ये जो इसके जो नुकसान है, ये जो इससे जो तकलीफ है पब्लिक को, इसके बारे में आपके दरियान हम लोग आई वांट टू गिव सम इसका अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करना बोल के हम अपील कर रहे। और ये जो पशु पक्षादि के लिए जो नुकसान हो रहा और जो ह्यूमन के सेफ्टी के बारे में आप लोग इसके बारे में वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना और जो लोग इसको क्लैंडस्टाइन बेच रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन भी हमारे को देना है। हम ये लोगों को ऊपर सख्त से सख्त एक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से हम ले रहे हैं। थैंक यू। जहाँ जो दिल्ली से आ रहे और गुजरात से आ रहे और मुंबई से भी आ रहे, ट्रांसपोर्ट के दरियान आ रहे, वो पूरे इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हम लोग कंटिन्यूस ये रेट्स कंटिन्यू करेंगे। हमारा सीपी साहब का इंस्ट्रक्शन से हैदराबाद सिटी में कोई भी एक जगह भी ये चाइनीज़ मांझा मिलने का वो अंदाज़ा नहीं होना बोल के हम लोग कर रहे हैं। ये मांझा एक्शन सबके ऊपर लेते हैं। जो लोग अब हमारे पूरे है, ये लोगों के कन्फेशन से जो उन्होंने कहाँ से ला रहा वो कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन में हो जाएगा। ऑनलाइन जो है तो अमेज़न वालों को आप लोग क्यों? तो अमेजॉन वालों को अब वो लीगल हम लोग लीगल एडवाइस लेना पड़ता है इसके वास्ते। अगर वो लोग क्या है वो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स से आ रहे हैं, वो ई कॉमर्स के ऊपर हम ले सकते नहीं ले सकता, वो क्या है वो जुमला मांझे की लागत क्या है? अभी ये 15 लाख का लागत का ये मांझा कल हम बरामद करें और पिछले साल में 40 लाख का कर दिए थे और उससे पहले एक 12-13 लाख का जब करे थे। अब ये साल तो और ज़्यादा से ज़्यादा और करेंगे। कोई भी कहीं भी अगर बेचे तो आप हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, टास्क फोर्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम को बोलिए आप लोग। हम लोग सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। ये पूरा जो है पूरा सीज करके वो लोगों पर क्रिमिनल एक्शन लगाएंगे। लीगल एडवाइस लेके करेंगे, लीगल एडवाइस लेके करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।